Well, good morning, dear students. I hope you are enjoying your health and study all together in a high spirit. So, today we are going to complete our chapter number 11, that is force and pressure. Let me change the date here first. This lecture is 6th. Okay. Now, regarding force, we have studied in details what is a force, push or pull is termed as a force, and effects of force, types of force, contact forces, non-contact forces, muscular force, frictional force, gravitational force, electrostatic force, magnetic force. Okay. Then we have tried to understand what is pressure. When a force is acting on an object, it is termed as pressure. And pressure is the force exerted per unit area. और हमने उसका फार्मूला लिया था P is equal to F divided by A. और F oblique A it is written as. और उसका जो SI unit था, that was Newton. That was Newton. Okay, pressure, but that one Newton pressure is equal to being that force exerted on a 1 meter square area. So 1 N per m square. हम क्या लिख सकते हैं उसको? 1 m per meter square. Okay. So that is also known as Pascal. That is also known as Pascal. So then we have studied about pressure in detail regarding the pressure exerted by liquids, pressure exerted by other objects, effects of pressure. कैसे? In daily life, what effect we are observing? Oh, step of that school bag should be broader. Tire of the heavy vehicle should be broader as compared to cycle or motorcycle. Like that we have tried to understood how pressure is exerted, and we have tried to satisfy the P is equal to F oblique A. That means pressure is equal to force divided by area. If the area is more, pressure exerted is less. If the area is less, because dividing factor the area is the denominator. चलो फिर हमने क्या किया बच्चों? प्रेशर को हमने when the force is acting on per unit area, that is pressure. So if we are having a liquid in a container, liquid is having a weight. By the weight of the liquid, force is exerted at the base of the container in which it is contained. That is also exerting a pressure. Then we have tried to study the pressure, liquid pressure. And we have done activities that higher the depth, higher the height of the column of the water in the container, higher is the pressure. And then we have done the activity that liquid pressure is not only exerted at the base, it is exerted in all the walls also. And we have done the activity that at the same depth, the pressure exerted by the liquid is always same. वो हमने 2 holes किए थे bottle के अंदर at the same height in the opposite direction, and the jet of the water has fallen at the equidistance. और जब हमने higher the depth, higher is the pressure, वो 3 holes वाला एक्टिविटी की थी. The jet of the lower hole, सबसे जो नीचे था, bottom पे था, where the column of the water is quite high, वो कहाँ गिर रहा था? ज्यादा दूरी पे गिर रहा था jet. So all these we are. Now if we say due to the weight, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? Pressure exerted by the gases.
We have tried not studied, we have tried to understood. Pressure exerted by the gases. Gases, so many gases are there: oxygen, hydrogen, helium, nitrogen, sulfur dioxide, phosphorus pentoxide, so many. But so these gases are what? Made up of what? Molecules. And I have shown you that a glass is not empty, it is filled with air. When air is there, so many gases are there. What these molecules of gases are doing in that container? They are continuously striking with themselves, they are continuously striking with the walls of the container. And the pressure exerted by the gases is because of the bombardment or the striking of the molecules of the gas. Then I have shown you some activity by inflating a balloon, that how the molecules, when they strike on the walls of the balloon, they cause it inflation. That means balloon gets inflated when you are putting more and more and more on air, more and more collision is there on the walls of this stretched rubber and all that, the balloon gets inflated. Now coming to the last topic, that is atmospheric pressure. We know when I am talking to you and I am standing here, there is a lot of air above my head. मेरे सिर के ऊपर क्या है? बहुत सारी एयर है, बहुत सारी एयर है, ठीक है. And in sixth we have studied air has weight. Air has weight. क्या करिए आप? You take a balloon, और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आती है बच्चों, they can weigh that in grams also, a fraction of gram also. Weigh empty. Empty मतलब जो एक गुब्बारा है उसमें अभी we have not filled in the air, we have not inflated it. You try to weigh that and note down the weight. Now the balloon should be a big one so that we can pump in some air at least. छोटे वाला होगा तो उसमें इतना, it will not get the reading. So when we blow air in it, it gets inflated. Now when we weigh it again, it shows a higher weight, which proves sixth में हमने सारी बातें पढ़ी थी, air has weight. अगर बच्चों, if there is air above my head and it is having weight, so if a water or a air in a container, because of its weight, can exert pressure, why not this huge column of air which is above my head, why it cannot exert pressure on my head? It can, and it is definitely exerting a pressure. और आपको मालूम है बच्चों, air on the earth, from earth to the top, what it is called? It is known as atmosphere. It is known as atmosphere. The layer above the earth is called pressure. The layer of earth, air. The layer above the earth. Which layer? Air. Okay. The layer of air above the earth is called atmosphere. थोड़ा correction कर लेना बच्चों. And the weight of atmosphere causes pressure on all sides, even upwards. Yes. अब क्या है बच्चों? जब हम ये कहते हैं air above the earth is known as atmosphere, and air has weight, so it is exerting pressure. It is exerting pressure. And this pressure is exerted in all direction, even upward direction also it is exerted. And और इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. And the atmospheric pressure is the highest at sea level. sea level को बेस मानते हैं, जीरो मानते हैं. अगर आपको कभी देखना बच्चों, हाइट, सी लेवल इज टर्म्ड एट जीरो, वेयर द
atmospheric pressure is the highest. Atmospheric pressure is the highest. Okay, and you know, atmospheric pressure again it is, जैसे प्रेशर है पास्कल्स में है, तो जो सी लेवल पे बच्चों पर मीटर स्क्वायर एरिया में 101.3 किलो पास्कल्स प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर बाय 1 मीटर के स्क्वायर में जो एटमॉस्फेयर है सी लेवल पे 101.3 किलो पास्कल्स पर मीटर स्क्वायर प्रेशर एक्सर्ट करता है। Such is the huge pressure exerted by the atmosphere. That means the layer above the earth of air. And this 101.3 kilopascals pressure मालूम है बच्चों कितना होता है? It is equivalent to the weight of 10 elephants. It is equivalent to the weight of 10 elephants. That means the weight pressure exerted by a weight of 10 elephants in 1 square kilometer, 1 meter area. यानी 1 मीटर एरिया में अगर 10 हाथियों को कई वेट का वेट डाला जाए, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 10 एलिफेंट्स का वेट, ग्रोन अप एलिफेंट्स, नॉट बच्चास, ग्रोन अप एलिफेंट्स, तो उसका जो वेट होगा that is being exerted by the atmosphere at the sea level. But बच्चों क्या इसका जो SI unit है, we are not measuring this atmospheric pressure in Pascal and all that. It is measured in millimeter mercury, mercury. जो प्रेशर है वो किस में होता है? mercury. ठीक है, तो जो सी लेवल पे 101.3 किलो पास्कल्स पर मीटर का है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो किसके इक्विवेलेंट है? 760 mm एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 760 mm एट सी लेवल। एंड वन थिंग मोर बच्चों क्या है, व्हेन वी से दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर is the highest at the sea level. But as we go up, suppose we are doing mountaineering, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, there the atmospheric pressure is less as compared to the sea level. That means as we go up, the pressure, air atmospheric pressure decreases. क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कुछ लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने जाते हैं, they are advised that you should be ready for some, उसको क्या बोलते हैं, acclimatization. क्योंकि आप प्लेन एरिया के रहने वाले हैं, पहाड़ों पे रहने वाले नहीं हैं। जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं तो आपको एक्लेमेटाइज करते हैं, 2-3 दिन आपको बेस कैंप पे उसको एडजस्ट करते हैं। आपको होता क्या है बच्चों, सिंस वो मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी। जैसे हमने अभी बात की, 1 मीटर एरिया के अंदर, 1 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर 10 एलिफेंट्स का वेट पड़ रहा है, कहां पे? समुद्र के तल पे। हम यहां है बच्चों, फतेहाबाद, सिरसा, ऑल दैट। सिरसा जो है 200.56 मीटर अबव सी लेवल है बच्चों। एयर एज वेट आई कैन रब, नो प्रॉब्लम, आई शुड यूज दैट। आप किसी भी बच्चों रेलवे स्टेशन पे जाओगे, रेलवे प्लेटफॉर्म के एक साइड में और दिस साइड क्या होता है, एक येलो बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर स्टेशन का नाम लिखा होता है। आपका इधर ये है, क्या कहते हैं, बट्टू मंडी है, डिंग मंडी है, सिरसा है। सिरसा के बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट अबव मीन सी लेवल, हाइट मीन सी लेवल।
200.56 मीटर। ये है करीब यू मल्टीप्लाइड बाय को आएगा जो भी फैक्टर आएगा बच्चों 656 समथिंग लाइक दैट, वो फीट के आसपास है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सिरसा के अंदर आप खड़े हैं, आपके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डल रहा है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन यू आर ऑन ए सी शोर, समुद्र के किनारे पे। क्यों? इट इज एट ए हाइट ऑफ 200.56 मीटर। तो बच्चों अगर मैं ये कहता हूं कि 7 है, अब 10 एलिफेंट का प्रेशर डल रहा है 1 मीटर स्क्वायर में, चलो मेरी जो हेड है, मेरी जो खोपड़ी है वो 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, आप यू कंसिडर इट 0.25 मीटर स्क्वायर, चलो इवन इफ यू कंसिडर 0.1 मीटर स्क्वायर, तो मेरे सिर पे भी तो क्या है बच्चों, 1 एलिफेंट का वेट डला हुआ है इसमें। Suppose if it is not 1 meter square, the area of my head is not 1 meter square, it is 0.1, 1/10 of a meter। तो भाई मेरे सिर पे भी क्या है, एक एलिफेंट बैठा हुआ है हर वक्त। अगर एक एलिफेंट बैठा हुआ है हर वक्त, then why I am not being crushed? क्यों? अरे एलिफेंट तो भाई देख के आदमी हो विशाल का है जानवर, अगर मेरे सिर पे एक एलिफेंट बैठ जाए, व्हाट विल बी माय पोजीशन? बट व्हाई आई एम नॉट बीइंग क्रश्ड? मैं पिचकता नहीं हूं, मैं दब क्यों नहीं जाता हूं? द ओनली थिंग इज, यू नो, वी 7th में हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज बीइंग सर्कुलेटेड थ्रू आउट द लाइफ इनसाइड द ब्लड वेसल्स, and that blood is circulating under a pressure which is known as what? Commonly it is known as blood pressure। कहीं लिखा होगा मैंने बीपी, yes, बीपी, blood pressure। This blood pressure which is exerted inside the blood vessels, that takes care of the pressure exerted by the atmosphere on my head। वो इक्वलाइज करता है, उसको इक्वलाइज करता है। इसीलिए तो क्या है बच्चों, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर, जिनका प्रेशर ज्यादा है, कोई लंबी चौड़ी चिंता करने वाली बात नहीं है। एंड इफ समबॉडी सडनली ड्रॉप्स इन ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर बीमार है किसी वजह से, उसका हार्ट पंप करना, वेसल्स में ब्लड जाना पंपिंग के साथ कम हो जाता है, बंद हो जाता है। इफ द ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, ये जो इक्वलाइज है, इक्विलिब्रियम है बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द बॉडी, वो खत्म हो जाती है, आपका जो हार्ट है स्क्वीज कर जाता है, आपकी डेथ हो जाती है। यानी लो बीपी गोइंग लो इज डेंजरस एज कंपेयर टू हाई बीपी, कभी फिर मौका आया तो आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सो दिस इज द ब्लड प्रेशर इनसाइड माय ब्लड वेसल्स which is keeping me alive, which is keeping me yes, or which is balancing the, neutralizing the effect of atmospheric pressure on my body, and my body is not being crushed। मेरी बॉडी क्रश नहीं होती क्योंकि मेरी ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर है। चलिए मान लिया ये बात भी हो गई। ओके, नाउ इफ आई से दैट एज वी गो हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। अब क्या बच्चों, माउंटेनिंग कर रहे हैं, पहाड़ों पे हम जाते हैं, एक्लेटाइज उन्हें क्यों किया जाता है, उस वातावरण में क्यों ढाला जाता है? रीजन बीइंग क्या होता है बच्चों, आपका जो ब्लड प्रेशर है दैट इज मेंटेन 120/80 द एवरेज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। बोलते हैं ना बीपी कितना भाई, 120/80, 120/80, दैट परफेक्ट, 100% ओके।
but it varies with age, it varies with some problems and all that. तो वो क्या है, अगर आपका 140 भी है अपर वाला और लोअर वाला 90 है या अप टू 75 है, 70 भी है, चलता है, बट द बेस्ट वन इज 120/80, 120/80, वो मरकरी है। वो भी आपने देखा होगा, अब तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट आ गए, पहले वो मरकरी वो एक ट्यूब में यहाँ पे लगा के आपको पंप करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, तो वो सब तभी जब डॉक्टर के पास जाओगे, ही और शी विल मेजर योर दिस बीपी। सो क्या होता है बच्चों, पहाड़ों पे हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, बट योर प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल इज द सेम। समटाइम्स क्या है, द ब्लड वेसल्स ब्रस्ट, जो आपके नाक की, आपके चेहरे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, नाक से ब्लीडिंग हो जाती है। दिस प्रूव्स दैट atmospheric pressure at the higher altitude is less as compared to the sea level. So this is all about this pressure exerted by our daily life के अंदर बच्चों क्या है, in daily life we are experiencing that atmospheric pressure is exerted। जैसे हमने डेली लाइफ में प्रेशर का किया था, वो स्ट्रेप ऑफ द बैग, जो आपका वो पोर्टर है वो सिर पे वो गमछा रखता है, लेडीज पानी लेने जाती हैं, वो सिर के ऊपर वो इनू क्या जो बोलते हो उसको, आई डोंट रिमेम्बर द कॉमन नेम, दैट रिंग मेड अप ऑफ क्लॉथ्स, सॉफ्ट क्लॉथ, वो मटके के ऊपर मटका, 3 मटके लेके आती हैं, दे डोंट फील प्रेशर ऑन देयर हेड। सेम वे व्हेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू that atmospheric pressure is exerted in all directions, even upwards। जैसे अब ये है तो ये मेरे हाथ के नीचे भी प्रेशर लग रहा है। ये कभी टाइम हुआ आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, आई विल लेट यू नो हाउ ए एरोप्लेन फ्लाइज। उसमें फोर्सेस काम करती हैं, थ्रस्ट विच इज टेकिंग द एरोप्लेन फॉरवर्ड, ड्रैग द एयर प्रेशर एंड ऑल दैट, जो उसे आगे से एक्सपीरियंस होता है वो उसे पीछे धकेलता है, एंड वेट ऑफ द एरोप्लेन ट्राइज टू ब्रिंग इट डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन आल्सो, ऑल दैट एवरीथिंग वेट डाउनवर्ड्स अपवर्ड। 4 फोर्सेस एट ए टाइम काम कर रही होती हैं, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट, ड्रैग, बट स्टिल द एरोप्लेन फ्लाइज। वो भी हम पढ़ेंगे, व्हेन द अपर वन प्रेशर इज लोअर देन द प्रेशर ऑन द bottom of the wings and all that, it's lifted and it goes in the air and all that, detail में समझाएंगे when you join the classes। Hope that we will meet in the month of December। चलिए, अब every day के अंदर जो हम experiences करते हैं, what atmospheric pressure के, और वो ये प्रूव करता है that pressure is exerted from upward, from downward, everything। कैसे? आप बच्चों क्या है, कोक स्ट्रा होती है, स्ट्रॉ पाइप प्लास्टिक की आती है आजकल, इवन सम वो आजकल कागज की भी आ रही है। जब आप वो कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी स्ट्रा से पीते हो, अब क्या है बच्चों, गिलास के अंदर आपके कोल्ड ड्रिंक है, ये स्ट्रा है। जब आप अब क्या होता है बच्चों, जब आप डिप करते हो, जहां तक लेवल है उसका, जहां तक लेवल है किसका, कोल्ड ड्रिंक का, स्ट्रा के अंदर भी वो कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, लेकिन यहां से लेके आपके माउथ तक, मुंह तक, उसके अंदर क्या है, एयर है। हम क्या करते हैं, हम सक करते हैं, किसको, कोशिश तो हम कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक को सक करने की, बट व्हाट वी आर सकिंग द एयर फ्रॉम हेयर टू दिस, ये ऊपर वाली एयर। जैसे ही ये एयर ऊपर सक होती है, यहां जो है एयर का प्रेशर 0 हो जाता है। पहले क्या था, ये यहां भी एयर है, स्ट्रॉ में भी एयर, इट वॉज द सेम, बट नाउ व्हेन दिस एयर इज सक्ड इन द माउथ, प्रेशर डिक्रीजेस हियर इन द स्ट्रॉ, जबकि जो बाहर लिक्विड है इसके ऊपर जो प्रेशर डल रहा है, मैंने एरोहेड दिखा रखा है ऐसे,
क्या है, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया, स्ट्रा के अंदर कम हो गया, कोल्ड ड्रिंक इज लिफ्टेड इनसाइड द स्ट्रा, और बड़े मजे से आप पीते हो, बड़े मजे से आप पीते हो। फ्रूटी लेते हो ना बच्चों, आप सब करते हो, आपने देखा होगा बच्चों, फ्रूटी के अंदर स्ट्रा डाल के जब आप फ्रूटी पी रहे हो, अगर वो आपका स्ट्रा थोड़ा सा हल्का सा टाइट गया हुआ है वो होल के अंदर, वो फ्रूटी का डिब्बा पिचक जाता है। जैसे ही आप सक करनी बंद करते हो, वो सेम अपनी पोजीशन पे आ जाता है। क्यों? स्ट्रा से फिर एयर चली जाती है अंदर। बच्चों क्या है, इफ यू वांट टू ड्रिंक फ्रूटी फ्लॉलेस, यानी बड़े आराम से आप पीना चाहते हो, वो सुडुक सुडुक की आवाज नहीं आए, I've written a letter to the Parle company also, but there is no response. आपने देखा होगा बच्चों, वो जो फ्रूटी होती है उसके ऊपर एक साइड में वो एल्यूमिनियम फॉयल लगी होती है, जिसमें आप पास थ्रू करते हो, स्ट्रा को डाल के उसमें होल करते हो। अगर बच्चों उसके ऊपर एक ही बजाय एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में होल हो, तो क्या होगा, इधर से आप फ्रूटी सक कर रहे हो, दूसरी साइड से जो होल है, अगर आपने उसको भी पार्ट्स कर दिया है, उसमें भी गड्ढा कर दिया है, उसको भी आपने एल्यूमिनियम फॉयल को कट कर दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता रहेगा, वो आपको, यू कैन कॉन्टिन्यूसली इन वन स्ट्रोक यू कैन फिनिश द फ्रूटी। और अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो बच्चों, बॉल पेन की टिप होती है ना आगे, एक तरफ तो आपने स्ट्रा डाल दी फ्रूटी में, दूसरी तरफ बॉल पॉइंट से या टूथ प्रिक से छोटा सा एक होल कर दीजिए, देन यू एंजॉय द फ्रूटी इन वन स्ट्रोक, यू विल बी इन ए पोजीशन टू फिनिश इट। दिस इज माय चैलेंज। I've written to company also, but they are not giving any response. I don't know why. It is not going to affect much to the company. यार एक इधर भी रखा है आपने होल्ड के लिए प्रोविजन, एक इधर भी रख दीजिए। सो क्या है, आराम सा बच्चा, उसे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो पिचकेगी नहीं। बट एनी हाउ, वंस अगेन आई मे टेक अप द मैटर विद कंपनी इफ समथिंग गोज इन अ पॉजिटिव वे। सो लिफ्टिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक इन द स्ट्रा, फीलिंग ऑफ ए सिरिंज, आपने देखा होगा बच्चों, डॉक्टर इंजेक्शन फील करता है सिरिंज के अंदर, वो क्या करता है बच्चों, सबसे पहले वो उसको पूरी तरह से उस सिरिंज में से एयर बाहर निकाल देता है, एंड वाइल डिपिंग वो क्या करता है बच्चों, जो उसका जो अंदर वाला स्पिंडल है, जो बड़े सिलेंडर के अंदर मूव कर सकता है, जब उसे वो पुश करता है अपनी साइड में, पुल करता है अपनी साइड में, यहां वैक्यूम क्रिएट होता है। व्हेन इट इज पुल्ड अपवर्ड, यहां वैक्यूम क्रिएट होता है। जब वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लिक्विड का, दैट लिफ्ट्स द इंजेक्टेबल लिक्विड इनटू द सिरिंज। तो सिरिंज के अंदर वो मेडिसिन इंजेक्शन भर जाता है। फाउंटेन पेन, अब तो क्या आप बॉल पेन यूज करते हो, पेंसिल यूज करते हो, छोटे होते हो, उसके बाद बॉल पेन, वी वर यूजिंग फाउंटेन पेन, उसमें भी ये एक सिस्टम था, वो उसको इंक के अंदर डाल के, ये वो जो इंक पोर्ट होती थी उसके अंदर इंक है, उसके अंदर उसको उसकी वो निब वगैरह को डाल के उसको सिस्टम को ऐसे वो प्रेस करते थे। वो ड्रॉपर भी वैसे ही काम करता है, ड्रॉपर भी वैसे ही काम करता है। ये देखिए, ये मेरे पास ड्रॉपर है। व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इसको लिक्विड में डाला, इसको प्रेस करता हूं, एयर बबल्स निकलते हैं। ये देखिए, जस्ट वॉच द वाटर इन द बीकर, यू विल फाइंड। अब जो इसके अंदर एयर है बच्चों, इस पाइप के अंदर, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट विल बी एक्सपेल्ड आउट, बबल्स बन रहे हैं। द मोमेंट आई लिफ्ट, जस्ट ईज माई हैंड, वाटर क्या है आपको बेटे राइज करता हुआ भी दिखाई देगा। इवन सी, बबल्स गए, ये लीजिए, ये लीजिए। So, filling of water in the dropper, filling of the syringe,
liquid or cold drink rising in the straw and all that. These are the common observation. अब क्या है बच्चों, जब हम इसको ड्रॉपर को ऊपर से प्रेस करते हैं, what happens is air inside this tube that is expelled, low atmospheric pressure is created. Okay, और जो यहां का प्रेशर है, ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वो क्या कर रहा है, वाटर को ड्रॉपर के अंदर ऊपर पुश कर रहा है. देन आपने आजकल देखा होगा बच्चों, आजकल फैंसी टेबल्स आती हैं, उनके ऊपर वो रबर सक्कर्स लगे होते हैं. आप उसके ऊपर अपनी ग्लास टॉप रख दीजिए. अब अगर आप ग्लास से भी उसको उठाते हैं, लकड़ी वाला जो नीचे वाला फ्रेम है, या कई बार आपने देखा होगा दीवार के ऊपर लगाने वाले, उसको आप प्रेस कीजिए, उसकी शेप ऐसी है शक्कर की, ये जो आपका इसके इनसाइड एयर है दैट विल बी एक्सपेल्ड, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे पड़ रहा है दैट विल स्टिक इट टू द वॉल. छोटा मोटा जो आपने इसके साथ तो अपनी क्या कहते हैं डेकोरेटिव फैंसी हैंगिंग्स लगानी है, वॉल हैंगिंग्स लगानी है, अब दिवाली आ रही है ना, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ मेटल्स. उसे हम क्या बोलते हैं, सक्कर्स. बेस्ट एग्जांपल इसका आपने छिपकली देखी है बच्चों, वॉल लिजर्ड, दीवार पे चलती है, उसके पांव के अंदर भी उसके जो पैडेड फीट्स हैं सक्कर्स टाइप होता है. जब वो चलती है दीवार पे, दीवार को प्रेस करती है, एयर इज एक्सपेल्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके पांव को वहां चिपका देता है, चलती है. So these are the common examples. Yes, one thing which I wanted to show you at the start, जब मैंने आपको ये कहा था that atmospheric pressure is exerted in all the direction, even in the upward direction. Upward direction. We could have done this activity at the start, but I was sometimes क्या है, कई बार ये एक्टिविटी बच्चों फ्लॉप हो जाती है. फ्लॉप होगी तो क्या होगा, वाटर विल स्पिल ऑन द अर्थ. कल भी मैं गिरते गिरते बचा हूं, जब कल मतलब लास्ट लेसन जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो अगर मैं पहले ही पानी यहां गिरा लेता, पर चांस we will complete this activity and I hope in first stroke we will be a success, but we may be unsuccessful also in this activity in the first attempt, we may be success in the second attempt. Let's try. क्या बच्चों, I am having a glass filled with water. नजर आ रहा है बच्चों आपको? What I am having a piece of paper. There should be no air bubbles and all that. Just gently put this paper, gently just push this paper. Now keeping one hand on this, tilt this. Okay? Now done? First stroke. Thank you. क्या हुआ बच्चों, मैंने जब गिलास लिया, पेपर मेरे हाथ में है. लेट्स ट्राई फॉर द सेकंड टाइम. लेट्स ट्राई फॉर द सेकंड टाइम. थोड़ा पानी निकल गया है, वी मे नॉट बी फेलियर. ओके, लेट्स ट्राई. हो गए फेलियर तो अब तो एक बार कर चुके हैं हम. एक बार इट शुड बी, वाटर शुड बी अप टू द टॉप. चलिए, अब क्या है बच्चों, बबल्स हैं भाई, निकलो. हाँ, यस, बबल्स नहीं है, पानी भरा हुआ है गिलास के अंदर, मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है. अब क्या है बच्चों, जब मैं इस पीस ऑफ पेपर को रखता हूं, हल्का सा इसे प्रेस करता हूं, जेंटली मैंने कर दिया इसको टिल्ट. अब क्या है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे हाथ के नीचे भी है, गिलास के ऊपर भी है, बट इट हल्का सा भी क्या है बच्चों, पेपर हिल जाएगा, वाटर विल स्पिल डाउन. इसमें क्या है, अब क्या प्रूव कर रहा है, गिलास के वो जो बॉटल है, नीचे है पेपर, अपवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पानी स्पिल नहीं होता. और अगर आप वैसे इसको ऐसे करोगे बच्चों,
So, with this we come to the end of this topic, chapter and everything. Study once, twice, see that video. Any problem, always welcome. Yes, I wanted to show you one drawing board pin here. ये बच्चों ड्राइंग बोर्ड पिन है, इसका ये हेड है, ये इसकी पॉइंटेड नेल टाइप है वो, ठीक है। अगर आप सपोज मैं हाथ से इस इवन बुक के ऊपर भी इसको लगाना चाहता हूं, आपके इस बने हुए इस फूल को, ये नहीं दिखता, बट इन केस आई एम हैविंग ए ड्राइंग बोर्ड पिन, I just push it, लीजिए। कहने का मतलब क्या है, योर थंब कैन नॉट पुश इट इनसाइड, लेकिन जो ड्राइंग बोर्ड पिन है हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, दैट गोज इनसाइड द पेपर्स एंड ऑल दैट, और ये फ्लावर आप तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप कुछ भी करना चाहें तो ड्राइंग बोर्ड पिन जो है वो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड और फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जितना ये कम एरिया होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, दिस पिन गोज इनसाइड। ओके, थैंक यू, एंजॉय योर स्टडी, थैंक यू।